We are assembled here. Today we are assembled here for a pep talk, or what we call motivational lecture, by today's Mohan Sangwal, co-founder of Seedlers, one of the organizations working in corporate training, leadership coaching, and consulting firm. Sir, I would like to request Dr. A.P. Gupta sir, former professor and head internal medicine and cardiology, BMCH. Right now, he is practicing his own private clinical practice. His interest lies in yoga and preventive cardiology. I would like to request Dr. A.P. Gupta sir. Okay. A huge round of applause is expected, sir. I request our fourth in charge, sir, DC sir, and A.P. Gupta sir. Now I would like to request Dr. A.P. Gupta sir for introducing our chief speaker, Dr. Sangwal. Dr. A.P. Gupta sir, please. Thank you very much. It is my proud privilege to welcome the speaker, Suresh Mohan Sangwal, the noted speaker on motivational topic. But, ladies and gentlemen, before I speak something about the speaker, I would like to express my gratitude to our revered Vice Chancellor, Professor S.V. Singh, for his consent to invite Sri Suresh Mohan Sangwal for his talk on motivational topic. Mr. Suresh Mohan Sangwal is a noted speaker of national fame. He did his MBA in HR and marketing and has published author of 5 books, Power of Responsibility and Selling Simplified, has already sold more than 2 lakhs copies so far. He PCC, Professional Certified Coach, and ICF Coach, Certified TA Practitioner by the Permit Institute, K1 UK, and TA level of 02 certification by Stonebridge University. He is also a certified NLP practitioner, means Neuro Linguistic Program by American Board of NLP. Mr. Sangwal has already facilitated more than 4,500 seminars, addressed more than 4 lakh participants of more than 400 corporate houses in the last 2 decades. He is also a regular speaker with CII and FICCI for the last 18 years for the various management and leadership programs. My dear friends and colleagues, ladies and gentlemen, that motivation plays a great role in achieving success in any field.
either you are in business or in a job or you are a student. And Mr. Sam, his specialty is to motivate you, and he is a wonderful motivational speaker. And he will be talking on impact of responsibility. He always says the responsibility is never given, it is always taken. With these few words, I offer my great feeling from the success of Golden Jubilee year of this Misla University Foundation Day program. And with these few words, I will now request Sri Suresh Mohan Sangwal to proceed with the before I invite Suresh Mohan Sangwal, I will request our Honorable Vice Chancellor to say a few words on this. Thank you. Motivational speaker Samuel ji, ऐसा विद्यालय के डीन संग्रहालय के अध्यक्ष भागों के सभी प्राध्यापक शासन जो भी यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे सभी सम्मानित साथी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उपस्थित हैं, वो सभी साथी मीडिया के साथ आप सभी विद्वान हैं। एक ओकेजन बनाया जाता है, अवसर की तलाश की जाती है। एक अवसर बना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 50 वर्ष की यात्रा में प्रवेश करने का। एक अनुभव 50 वर्ष का यादगार होना चाहिए। उसी सिलसिले में, उसी क्रम में आपसे मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि जो भी गतिविधियां विभाग की होंगी या विश्वविद्यालय की होंगी, सब इस 50 वर्ष की यात्रा के तरफ इसके साथ जोड़ कर करेंगे। इसीलिए लेटर हेड पर हमने 50 साल के लोगों को लिया। आपसे अनुरोध किया, आप जो भी पत्राचार करें इस 50 साल के लोगों के लेटर हेड पर करें, जिससे यादगार रहेगी 50 साल और उसी यात्रा के क्रम में ही आज का लेक्चर है। गुप्ता साहब को आप अच्छी तरह से ज्यादा जानते हैं। डेडिकेटेड पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं और प्रोग्रेसिव वे में किसी टास्क को लेते हैं। आपने नाम दिया जिसके साथ आज हम रूबरू होने जा रहे हैं, सैमुअल साहब के साथ। हम सभी टीचर हैं, पूरा साहित्य इस बात से भरा हुआ है, जो मन की ताकत है सबसे बड़ी ताकत है, उससे बड़ी और कोई ताकत नहीं। सारे पावर्स जितने भी हैं, सारी फोर्सेस जितनी भी हैं, वो उससे छोटी। ये मन की ताकत को बड़ा कैसे किया जाए? वो साधनों से नहीं बड़ा होता है, वो दोस्तों की संख्या से नहीं बड़ा होता है, वो किसी के प्रोटेक्शन से बड़ा नहीं होता है। 10 लोग मिलकर किसी को प्रोटेक्ट करें और बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होगा। तमाम सारी चीजें जो इक्वालिटी की रही है दर्शन में, वो किसी को आगे लाने में पर्याप्त नहीं रही है, सब फेल हो गई। ये तब इमर्ज हुआ है जब हमने मन से इस चेतना को स्वीकार, मन की ताकत को लिया है। ये जो मोटिवेशन है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कितना एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती है, कितना कोलैबोरेट करती है, कितनी ताकत देती है, कैसे पूरा होता है और आगे पता नहीं क्या क्या बातें हैं इसके साथ। तो इस विषय पर आज ये मोटिवेशनल लेक्चर हम सब के लिए, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, हम सब के लिए
कुछ कोशिश करते हैं सुनने की, समझने की, सुनने भर से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, कहते भी इस बात को हैं, कहने से कुछ नहीं होता, सभी कहते हैं, सबके भी कहते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं बिना कहे भी कुछ नहीं होता। दोनों पूरी पैरेलल लेके चलते हैं, कहने से भी कुछ नहीं होता और बिना कहे भी कुछ नहीं होता। तो कुछ करने के लिए कुछ हलचल करनी है, तो आइस को ब्रेक करना है, ब्रेकिंग ऑफ आइस जो ब्रेक करना है, तो सचमुच का बर्फ नहीं तोड़ रहा है, लेकिन जो मन के अंदर बर्फ जमी हुई है उसको एक्शन नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास भी अगर इस तरह के कोई विचार बनते हैं तो इसको जरूर ऑर्गेनाइज कीजिए। जो मोटिवेशन है एक रेगुलर फीचर है आपका हो सकता है। हम तो सभी विद्वान हैं, टीचर साथी हैं, ये मान के चलते हैं हमको मोटिवेट कौन करेगा, हम तो हाईली मोटिवेटेड हो या ना हो वो दिक्कत पहलू है, लेकिन हमें कौन ज्ञान देगा, शिक्षक को कौन शिक्षा देगा, ये प्रश्न बड़ा होता है। लेकिन जो दर्शन है वो ये कहता है शिक्षा तो बिना पढ़े लिखे से भी मिल जाएगी, उसके लिए पढ़ाई की कोई बहुत जरूरत नहीं। तो ये जो वाक्य है, कहाँ से लेना क्या है, क्या सीखना है, कहाँ से क्या उठाना है, कहाँ से क्या लेना है, कैसे यात्रा को आगे पावर के साथ चलना है, स्टार्ट करना है। तो यात्रा तो खत्म होती सबकी खत्म होती, अगर वो पावर के साथ है, एंटरटेनमेंट के साथ है, एंजॉयमेंट के साथ है, प्रोग्रेस के साथ है, कुछ अचीवमेंट के साथ है, उसकी कहानी तो चलते रहिए, चलने का सिलसिला तो कोई क्या समय तो चलता रहता है, वो तो अपने आप चलाता है, उसके साथ चलते नहीं। समय के साथ हमें से कोई नहीं चलता, समय तो चला करके वहां पहुंचा रहता है, तो पहुंचा देगा, हम चले या ना चले पहुंचा देगा। इस रूप में आज का ये लेक्चर होगा, मोटिवेशन सीरीज शुरू, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। आप देखिएगा बेस्ट सेलिंग बुक्स में पूरे वर्ल्ड के अगर रिकॉर्ड है तो मोटिवेशनल बुक्स का ही, किसी और बुक्स का बेस्ट सेलिंग रिकॉर्ड, बेस्ट सेलिंग बुक्स में अगर अभी ये डाटा इकट्ठा करेंगे, जितनी मोटिवेशनल बुक्स हैं उनका ही बेस्ट सेलिंग किसी की बुक से। तो ये रियली जो बात है जिसकी जरूरत है वो आज एक तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और हम भी उसमें शामिल है, खुद भी उसको चाहते हैं। इसके लिए अगर आभार बनता है इसी का, पहले डॉक्टर साहब का बनता है कि ये आपने इस बात को, और दूसरा आपने सैमुअल साहब को तैयार किया कि वो अपने बहुत बिजी शेड्यूल से हम लोगों को कुछ बता सकें, हम उससे कुछ सीख सकें, कुछ प्रेरित हो सके, थोड़ा सा प्रेरणा ले सके और कुछ पार्टिसिपेट कर सके। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। इसका यदि आप शुरू कर सकते हैं। Thank you, sir, for your encouraging and motivational words. Being a student of psychology myself, I'm personally very enthusiastic for this lecture. Now I request our speaker, sir, Srimal, sir, to take over the dais. Srimal, please. Thank you. Good morning, नमस्ते, नमस्कार। अगर मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही है तो जरा थोड़ी आवाज करके बताइए मुझे। Yes, sir. Yes. Okay, all right. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, Vice Chancellor Saab, Dr. A.K. Gupta, and all the present faculty members and dignitaries. First of all, I would like to thank all of you for honoring me to invite for this lecture on such a wonderful occasion, such a glorious occasion. You're celebrating your golden jubilee, and I happen to become a part of it somehow. Because before today, I had no contribution in this, great institution that you already have. So thank you very much for giving me this wonderful opportunity to become a part of it in some way. And I would like to extend my deepest thanks to Dr. A.K. Gupta for making it happen. And
मैं अभी वीसी साहब को जब सुन रहा था, तो उनकी जो हिंदी मैंने सुनी, उसके बाद मुझे लगा कि अब सुरेश सेमवाल साहब को बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैं मैच नहीं कर सकता, उनका ज्ञान को भी मैच नहीं कर सकता, उनकी भाषा पर जो पकड़ है उसको मैच नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या करें साहब, आपने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसकी भाषा पर उतनी पकड़ नहीं है, तो मेरा आपसे निवेदन ये होगा कि थोड़ा-सा मेरे साथ ज़रा सहन करें। मैं हिंदी, अंग्रेजी दोनों में थोड़ा-थोड़ा जो मुझे समझ आता है, मैं आपके साथ बातचीत करूँगा। अब मैं 2-3 चीज़ें पहले बता दूँ। देखिए साहब, ये जो वीसी साहब ने बिल्कुल सही बात बताई है अभी कि मोटिवेशन पे सबसे ज़्यादा किताबें बिकती हैं, और उससे भी ज़्यादा किताबें बिकती हैं डाइट पे। डाइट पे। तो एक्चुअली अगर नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड फॉर डाइट एंड नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड फॉर मोटिवेशन देखी जाए, और अगर हम ये मान लें कि द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स बीइंग रेड एंड इम्प्लीमेंटेड, then I don't think anybody will need any motivation or tips on diet or health anymore. So these huge numbers and then the actual situation of people clearly indicate that people are buying books but definitely not reading them, and if reading them then definitely not implementing them. So in a way, good for those who are writing those books but not good for those who are buying but not implementing. और जैसा अभी वीसी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए, सिर्फ सुनने से नहीं होता, करना भी बड़ा जरूरी है। सो लेट मी बिगिन बाय शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू कि देखिए, हम में और जापानियों में एक बहुत बड़ा अंतर मैंने देखा है, क्योंकि मेरे बहुत से कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ना जापानी हैं। तो जापानी में और अपने में मैंने एक अंतर जो देखा है, सोचते हम भी हैं, सोचते वो भी हैं, करते हम भी हैं, करते वो भी हैं। लेकिन हमारा फर्क कई बार मैंने क्या देखा है, सीक्वेंस का है। हम लोग कई बार ना पहले कर देते हैं और फिर बाद में सोचते रहते हैं कि ये क्या हो गया है। लेकिन उनका क्या है कि वो पहले बहुत सोचते हैं, सोचने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं, और उसके बाद फिर जल्दी से कर देते हैं। समस्या वहां आती है, या तो कहीं सोचा ही नहीं जा रहा और किया जा रहा है, या जहां सिर्फ सोचा जा रहा है और किया कुछ नहीं जा रहा है। जैसे आप सब लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप सब प्रोफेसर लोग हैं, आप लोग अपने अपने क्षेत्र के महारथी लोग हैं। आप किसी को समझाइए कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप जिसको समझाएंगे वो आपको समझा देगा कि हाँ मुझे पता है। मेरा एक मित्र है, मैंने उसको बोला यार सिगरेट स्मोकिंग किल्स, पैकेट पे लिखा हुआ है, फिर भी पीता है। कहता है इसीलिए मैं कभी डब्बी नहीं लेता, खुली सिगरेट लेता। तो अब आप देखिए कि हमारे यहाँ ना ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की गंगा तो यहाँ सब जगह बह रही है साहब, लेकिन समस्या क्या है, एक्शन में। ऐसे ही एक और साहब को मैं जानता हूँ, हमारे रामदेव जी को बहुत मानते हैं। आप लोग तो खैर मुझे नहीं पता आपका क्या उनके बारे में विचार है, लेकिन वो जो हमारे मित्र हैं वो रामदेव जी को बहुत मानते हैं। और पता क्या कहते हैं, योगा में बड़ा दम है। रोज सुबह 5 से 7 रामदेव जी का प्रोग्राम देखते हैं जी टीवी पे, लेकिन लेटे लेटे देखते हैं, उठ के करते नहीं है। तो अब देखिए, योगाभ्यास को टीवी पे रामदेव जी से करा के देखते हुए कोई हमारे जीवन में असर नहीं आएगा जब तक हम उस पर करेंगे नहीं, राइट? So I 100% agree with the thoughts of VC Saab that it is ultimately which is action which will lead to result, and the power of motivation, मन की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, और सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। I 100% agree. So now you have invited me to talk on this wonderful topic, and I happen to love this topic of responsibility for one simple reason, that I could write a book, जिम्मेदारी की शक्ति, और उसी का फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सी, आई डोंट क्लेम दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नो एज मच एज यू ऑल नो, लेकिन अब क्योंकि मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मैं इसी पर पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। सो लेट मी शेयर विद यू वट एवर लिटिल आई नो। ओके, सो अगर बीच में कोई गुस्ताखी हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा साहब, आप सब लोग बड़े हृदय के लोग हैं, अगर गलती होगी तो माफ भी कर देंगे। तो ऐसा मान के मैं आपसे आगे की बात करता हूं। देखिए, आई एम श्योर लेडीज एंड जेंटलमैन, यू विल agree that every newborn baby is capable of learning any language of the world. हर नवजात शिशु में पैदाइशी ये क्षमता है कि वे दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकता है, राइट?
लेकिन आप देखिए कि हम लोग एक या दो भाषा में ही थोड़े निपुण हो पाते हैं। क्यों? ब्रह्मा जी ने या ऊपर वाले ने तो हमारे अंदर कंपोनेंट दिया है किसी भी भाषा को सीखने का और बोलने का, लेकिन हम उन्हीं भाषा में पारंगत हो पाते हैं जिनका हमें एक्सपोजर मिला है, जिसका हमारे वातावरण में बोलचाल है और जिसका हमने अभ्यास किया है। So today, you and I, whatever you and I are, we are a sum total of our exposure, environment, and practices, right? So, एक ऐसे ही मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि एक जगह चाइना में एक तीरंदाज अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था पब्लिक गैदरिंग में। तो वो बहुत दूर से निशाना लगाए और बिल्कुल बैंग निशाने पर तीर लगे। तो जो पब्लिक आसपास खड़ी थी वो बहुत तालियां बजा रही थी, बड़ी उत्साहित हो रही थी उसको देख के। लेकिन उसी पब्लिक में एक भाई साहब खड़े थे जो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हो रहे थे। तो जब भी वो तीरंदाज का निशाना बिल्कुल निशाने पर लगता है तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ओ इसमें क्या खास है, ये तो प्रैक्टिस की बात है। व्हाट इज सो स्पेशल इन इट? इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो तीरंदाज को जब ये कान में पड़ती थी तो ऑफ कोर्स उसको अच्छा नहीं लगता था, पर खैर वो फिर दूसरा निशाना लगाया, वो भी बिल्कुल निशाने पर लगा, पब्लिक फिर ताली बजा रही है, पर ये आदमी फिर कह रहा है ओ इसमें क्या खास है, प्रैक्टिस की बात। तो खैर, तो जब उसका शो ओवर हो गया तो तीरंदाज उस आदमी के पास गया जो बार बार ये कह रहा था इसमें क्या खास है। तो तीरंदाज ने उससे कहा कि भाई साहब ये आप कर लोगे ये जो मैं अभी कर रहा था? तो उस आदमी ने कहा नहीं मैं तो नहीं कर सकता। तो फिर तीरंदाज ने कहा फिर आप क्या कह रहे थे कि इसमें क्या खास है, इसमें क्या खास है? तो उस आदमी ने कहा जी मैं यही कह रहा था कि इसमें क्या खास है, प्रैक्टिस की बात है, आपने इसकी प्रैक्टिस किया आप कर सकते हो, मैंने नहीं की इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो तीरंदाज मुस्कुराया कि हाँ ऐसे बहुत से लोग बहाने बनाते हैं। तो इस आदमी ने तीरंदाज से कहा, कह रहा जी अच्छा मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ क्या? तो तीरंदाज हैरान हुआ, उसने कहा जी आप क्या दिखाएंगे? कह रहा जी आप चलिए मेरे साथ। तो ये साहब अपने साथ उस तीरंदाज को ले गए अपनी दुकान पर। इनकी तेल की दुकान है और ये इनका काम क्या है, सारा दिन तेल की बड़ी बड़ी बोतलों में से तेल निकाल के छोटी छोटी बोतलों में डालना है, राइट? तो वो एक बड़ा सा कैन उठाते हैं तेल का और ऊपर से धार डालते हैं सीधा बोतल के अंदर, और वो 10-12 बोतल जल्दी जल्दी भरकर दिखाते हैं। और मजाल है कि एक भी बूंद किसी बोतल से बाहर गिर जाए, सो प्रिसाइज। तो ये देख के तीरंदाज इंप्रेस हो जाता है, कहता वाओ यू आर ग्रेट। वो कहता नहीं प्रैक्टिस की बात है, इट इज जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस स्टोरी का जो तात्पर्य है आप समझ गए होंगे कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने तीरंदाजी की प्रैक्टिस की है या आपने बोतल में तेल डालने की प्रैक्टिस की है। जिस चीज को आपने दिल लगा के मन लगाकर प्रैक्टिस की है उसमें आप और मैं परफेक्ट हो जाते हैं। सिंपल। आपने अपने आसपास कई लोग देखे नहीं है साहब कि वो रोज सुबह सैर पर जरूर जाते हैं। अगर वो किसी दिन नहीं जा पाते किसी कारणवश तो उस दिन उनको अपना दिन ठीक नहीं लगता। व्हाई? इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आंख में आंख डाल के झूठ बोल देते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको झूठ बोलने की भी क्या हो रखी है, प्रैक्टिस हो रखी है, राइट? So similarly, ladies and gentlemen, responsibility, जिम्मेदारी भी मेरे हिसाब से it is also a matter of practice. आप सब लोग जानते होंगे, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अगर अपने यूनिवर्सिटी में कहीं पर देखते हैं कि कोई चीज वेस्ट हो रही है या कोई चीज गलत हो रहा है, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट की ना भी हो, आप उसमें कुछ एक्शन लेते होंगे, उसमें कुछ सुधार चाहते होंगे, उसके लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन तक वो बात पहुंचाते होंगे। Why? Because feeling responsible is also a habit. It's a practice. अच्छा, और ऑन द सेम लाइन आप देखोगे हमारे ही अपने घर में अपने ही बच्चे अपने कमरों की लाइटें बंद नहीं करते, कमरे से बाहर चले जाते हैं पर पंखा बंद करके नहीं जाते। Why? Again, it is just a matter of practice. So responsibility, I'm sure आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे, responsibility as a word is a very dreaded word. Responsibility is something which everyone wants to give and nobody wants to take. देना सब चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, पर जिम्मेदारी लेना थोड़ा सा मुश्किल काम है। And if I were to make it very simple for all of us, जैसे कई लोग पूछते हैं जी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, I think इसको अगर हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें
the one line definition of responsibility that I understand is it is all about bridging the gap between what I can and what I do. Let me repeat. To me, responsibility is all about bridging the gap between what I can and what I do. मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या कर रहा हूं, इसके बीच का अंतर मिटाना मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, हम में से ऐसा कोई नहीं है जो सब कुछ कर सकता है। मैं कई बार अपने प्रोग्राम में ना लोगों से पूछता हूं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करंट लाइफ सर्कमस्टेंसेस? आपके आज के जीवन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कई लोग जब मोटिवेशनल प्रोग्राम में होते हैं तो वो सीधा बोलते हैं, नहीं जी मैं जिम्मेदार, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी। अब फिर उनको ना थोड़ा समझाना होता है कि ठीक है, आप मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, पर आप जरा सोचिए, अगर आज आप अफगानिस्तान में होते है? और आप बिल्कुल तरीके से स्कूल जा रहे थे, तरीके की नौकरी कर रहे थे, अब सडनली सत्ता परिवर्तन हो गया है, बंदूक वाले आ गए हैं, तो अब हाउ आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आपने ना उनको इनवाइट किया, ना आपका इसमें कोई लेना देना है, पर अब सडनली सत्ता परिवर्तन हो गया, हाउ आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? The place you are born, the quality of your parents, the quality of your teachers, and the quality of political system, all these things also have an impact on my life. I agree. So it will be, a little difficult for me to say that I am 100% responsible for my current life circumstances. तो जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप को इस बोझ से दबा दें कि हाँ जी मेरे जीवन में जो भी हुआ है मैं ही जिम्मेदार हूँ. Of course, there are external circumstances, external reasons which have an impact on quality of my life. Point taken. But then, having said that, what will I do about it? Will I do what I can? That's a simple question. मैं अपने हर प्रोग्राम के अंत में लोगों से यही कहता हूं कि देखिए, हम सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सब लोग कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं. और हाँ, अगर हम सब लोग कुछ ना कुछ कर दें तो बहुत कुछ हो सकता है. और मैं कह रहा हूं, चलो कई लोग ऐसे भी कहते नहीं जी हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं कह जी अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप पता क्या कर सकते हैं? आप चुप रह सकते हैं. जो कर रहे हैं फिर उनको करने दीजिए, इतना तो कर सकते हैं, राइट? So responsibility, let me repeat again, as per my understanding, is just bridging the gap between what I can and what I actually do. अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आप लोग अपनी सेहत के लिए, अपनी स्वयं की सेहत के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? तो आपको पता है इसका जवाब कई बार बड़ा पेनफुल होता है. कि नहीं साहब, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं जानता हूं मैं कर सकता हूं पर अभी भी कर नहीं रहा हूं, राइट? So that's what my responsibility is. Okay. And one formula that I generally share in my program, E plus R is equal to O. E plus R is equal to O. E plus R equal to O का मतलब जो है event plus response is equal to outcome. Events at times may not be in my control, but response is always my choice. And that has an impact on आउटकम. आप सब लोग दशरथ मांझी के बारे में जानते हैं साहब. दशरथ मांझी की स्टोरी आज पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं. एक अनपढ़ लेबरर, डेली वेजर, एंड जस्ट सी व्हाट वन मैन कुड डू, मन की ताकत से और कंसिस्टेंसी के साथ. हथौड़ा लेके साहब 22 साल एक पहाड़ के पीछे पड़ा रहा एक आदमी. लेकिन अब समस्या ज्यादातर लोगों के साथ क्या है, वो कहते हैं कि जब तक दुनिया का हर आदमी अपना काम ठीक ना करे, अपनी जिम्मेदारी ठीक ना करे, तब तक मैं भी वो नहीं करूंगा जो मैं कर सकता. So the one question, ladies and gentlemen, I generally leave people with, and that is just ask yourself one question. Am I doing what I can? That's it. Am I doing what I can? Am I doing everything that I can for my own health? Am I doing everything that I can for my own work? Am I doing everything that I can for my family happiness? Am I doing everything that I can as a citizen? Am I doing everything that I can even for my spiritual goals? Unfortunately, the answers are painfully no. No, मैं तो वो भी नहीं कर रहा जो मैं कर सकता हूं. तो इस कारण से जीवन में फिर क्या रहता है जी, वो गिल्ट, द्वंद और अननेसेसरी हम इन चीजों से घिरे रहते हैं. देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कि मैंने कहा, ये एक फीलिंग है. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद डेजिग्नेशन. आपने एक वो छोटी कहानी सुनी होगी ना कि एक पहाड़ी क्षेत्र में एक पहाड़ी लड़की होगी 14-15 साल की,
उसने अपनी गोद में अपना एक वो छोटा 1.5-2 साल का 2.5 साल का बच्चा भाई उसको लेकर एक पहाड़ी चढ़ाई पर चढ़ रही थी। उसी पहाड़ी पर एक साधु सन्यासी जिसने बहुत सारे ग्रंथ की पोटली बांधी हुई थी, वो भी चढ़ रहा था। तो एक इंटरसेक्शन पर दोनों की मुलाकात हुई, तो दोनों हाँफ रहे थे क्योंकि पहाड़ी पे आप जानते हैं जी चढ़ाई पे थकान होती है। तो एक जगह जब दोनों बैठ गए तो साधु ने लड़की की तरफ देखा, कह रहा बेटी बड़ा बोझ उठा रखा है, थक गई होगी, रख दे। बड़ा बोझ उठा रखा है, थक गई होगी, नीचे रख दे। वो पहाड़ी लड़की साधु को देखती है और कहती है महाराज बोझ तो आपने उठा रखा है, ये तो मेरा भाई है। बोझ तो आपने उठा रखा है, ये तो मेरा भाई है। उस छोटी सी लड़की को पता है कि ये जो मेरी गोद में है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा भाई है। तो जिम्मेदारी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी एक ताकत है। जिम्मेदारी हमें रोज सुबह अपने बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है, प्रोवाइडेड हमने ये जिम्मेदारी अपनी मर्जी से ली हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में 2-3 चीजें जो मुझे समझ आती है, मैं आपके साथ क्विकली शेयर करता हूं। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फीलिंग, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद डेजिग्नेशन। जरूरी नहीं है कि जो जो घर में सबसे बड़ा होगा वो घर का सबसे बड़ा जिम्मेदारी का व्यवहार करता है, नॉट नेसेसरली ट्रू। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ बिहेवियर, इट्स नॉट अ डेजिग्नेशन, इट्स अ फीलिंग। कुछ लोग फील करते हैं, कुछ लोग फील नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस कोरोना से पहले जब आप लोग भी इधर उधर भ्रमण करते थे, और आप में से जो लोग विदेश गए हैं, अब आप लोग जानते हो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे शराब फ्री में मिलती है। ओके, अब कई लोग जो पहली बार शायद ऐसा सफर कर रहे होते हैं, वो भूल जाते हैं कि ठीक है शराब फ्री में मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने सिर्फ शराब ही पीनी है। अब उसका नतीजा क्या होता है कि वो जो इंटरनेशनल स्टाफ होता है उनके ऊपर इंप्रेशन देशवासियों का गलत पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि यार ये लोग ऐसे ही करते हैं। अब ये लोग में तो फिर वो भी शामिल हो गए ना कि जो ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे, तो हमारे पासपोर्ट की इंसल्ट हो जाती है ना। So some people don't understand that responsibility is a feeling. That's number 1. Number 2, responsibility cannot just be given. It needs to be taken. And number 3, जो सबसे बड़ा मैंने देखा है जी जनरली जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, the word responsibility is generally associated with the past. जो हो चुका है उसकी जिम्मेदारी किसकी, लोग इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग ओनरशिप फॉर व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो मींस टेकिंग ओनरशिप फॉर फ्यूचर। ओके, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे स्कूल नहीं भेजा, मेरा जन्म उस समय पे हो गया जब ऐसी सुविधाएं नहीं थी, ठीक है, आई एग्री। अब ये पास्ट टेंस है, इसके बारे में आप और मैं चाहें तो सारी जिंदगी गाना गा सकते हैं, लेकिन व्हाट एम आई डूइंग फॉर मेकिंग फ्यूचर बेटर, दैट इज व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट। आप सब लोगों से मेरा एक रिकमेंडेशन है, अगर आपको समय मिले और अगर आपने ना पढ़ा हो तो एक किताब पढ़िए, द प्रोफेशनल बाय सुब्रतो बागची। Subrata Bagchi Saab was the co-founder of a company called Mindtree Solutions, a very successful IT company. और आज की तारीख में वो उड़ीसा गवर्नमेंट के एडवाइजर हैं, वेरी गुड मैन। उनकी किताब में मैंने एक स्टोरी बड़ी उनके बचपन की जो उन्होंने स्टोरी शेयर की थी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता का ना ट्रांसफरेबल जॉब था, उनकी सरकारी नौकरी थी, तो ट्रांसफरेबल जॉब था। तो कह रहा है एक तो हमारे पिताजी कभी हमें सरकारी जीप में घुमाने नहीं ले जाते थे कहीं नहीं। वो कहते थे भाई ये जीप तुम्हारे पिताजी को मिली है और उनको अपने कार्य के कारण मिली है, जिस दिन मैं इस पद पे नहीं रहूंगा ये ले ली जाएगी, तो तुम्हें आदतें ऐसी नहीं डालनी। ओके, तो एक तो वो, दूसरा कह रहा क्योंकि ना मेरे पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो एक जगह जब हमारा वहां ट्रांसफर हुआ तो उनको जाते ही पता चल गया कि यहाँ से 3 महीने में जाना है। लेकिन कहते मेरी माता जी को ना बागवानी का शौक था, तो वो अपने घर के पिछवाड़े में जो एक बंजर सी एक उबड़ खाबड़ धरती थी, तो उन्होंने उस पर सब्जी वब्जी लगानी शुरू कर दी, फूल फाल लगाने शुरू कर दिए। तो एक बार एक पड़ोसन ने पूछा कि बहन जी मैंने तो सुना है कि आप अगले 1 महीने में आप जाने वाली हैं, तो आप ये जो इतनी ये फल फूल लगा रहे हो, जब तक इस पे कुछ बारी आएगी तब तक तो आप जा चुके होंगे। तो कह रहे मेरी माता जी ने उस लेडी को जवाब दिया कि आपकी बात बिल्कुल सही है, हम 1 महीने में जाने वाले हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है कि जब मैं यहाँ आई थी और जब मैं यहाँ से जाऊंगी, तो क्या मैं इस धरती के टुकड़े को बेहतर बना के गई कि बदतर बना के गई, इतनी जिम्मेदारी मेरी है।
तो जब मैं आई थी तो ये वीरान था, उबड़ खाबड़ था। मैंने थोड़ा बहुत इसकी गड़ाई बुआई कर दी है, कुछ बीज डाल दिए हैं। अगर मेरे बाद आने वाला इसका ध्यान रखेगा तो उसको कुछ फल फूल देखने को मिलेंगे साहब। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग आउट कि किसकी गलती थी। आपने देखा नहीं है, आज तक कई लोग कह रहे हैं जी कि भारत का पहला प्रधानमंत्री अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज हमारा देश कुछ और होता। अब देखिए, होता नहीं होता इसके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर मुझे ये पता है कि नेहरू साहब और वल्लभ भाई पटेल साहब दोनों अब जा चुके हैं। अब ये बताओ आगे क्या करना है। अब वो पाकिस्तान जिन्ना की वजह से बना था कि गांधी जी की वजह से बना था कि कांग्रेस की वजह से बना था कि किसकी वजह से बना था, अब वो हो चुका है। अब बताओ आगे क्या करना है। But unfortunately, you will find that some people are constantly talking about the past, dragging the past in the present, and then unnecessarily spoiling the future. आप लोग देख रहे हैं, कई लोग अपने इतिहास का इतना गौरवपूर्ण महिमा मंडन ऐसे करते हैं जैसे इसमें इन्हीं का सब योगदान था। अब कई लोग कहते हैं जी भारत ऋतुओं का देश है, तो इसमें आपका क्या योगदान है? वो तो ऑटोमेटिक है। भारत नदियों का देश है, हाँ बात सही है, नदियों का देश है। हर साल कोसी नदी कितने लोगों को बहा के ले जाती है। तो आप उसके बारे में कुछ करेंगे कि बस इसका महिमा मंडन करेंगे कि भारत नदियों का देश है? हम तो कोई नदी स्पेशली इंपोर्ट करके नहीं लाए, हमारे पूर्वजों ने कुछ किया होगा काम। अब कई लोग अपने पास्ट टेंस का ही क्रेडिट लेने में सारी जिंदगी अपना प्रेजेंट वेस्ट कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट डूइंग समथिंग अबाउट द फ्यूचर. So I think responsibility is not just talking about the past. Responsibility is also about taking ownership for the future. You know, आप और मैं बैठ के यहाँ बहुत हाय हाय कर सकते हैं पास्ट की गलतियों के बारे में, लेकिन उससे हम कुछ सीख लें, जो गलतियां की हैं वो दोबारा ना करें, लेकिन अब कुछ करें टू मेक आवर फ्यूचर बेटर. एंड आई गेस दैट इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल पीपल डू. आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने कोई ना कोई संग्रहालय, म्यूजियम जरूर देखा होगा. और अगर आप लोग किसी संग्रहालय में जाते हैं, कोई भी म्यूजियम देखने जाते हैं, तो देखिए आपकी ना कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि भाई म्यूजियम जो है यहाँ टिकट कम से कम होनी चाहिए, वहां पर कोई म्यूजियम में कोई गाइड होना चाहिए या कोई ऑडियो हेल्प होनी चाहिए. अच्छा, जो म्यूजियम की लोकेशन है वो कहीं सड़क के नजदीक होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, वहां पर साइनेजेस प्रॉपर होने चाहिए, आपको कोई नई जानकारी मिलनी चाहिए, हो सके तो लाइटिंग एयर कंडीशनिंग भी प्रॉपर हो. राइट. तो जब एक आदमी संग्रहालय देखने जा रहा है तो उसकी ये कुछ अपेक्षाएं होती हैं. लेकिन मुझे नहीं पता आप में से किसी ने कोई मूवी देखी है जिसमें लोग खजाने की खोज में जाते हैं, खजाना ढूंढने जा रहे हैं, या? तो जो लोग खजाना ढूंढने जाते हैं उनकी क्या अपेक्षाएं होती हैं जी सुख सुविधाओं की? क्या वो ये अपेक्षा करते हैं कि खजाना इनको हाईवे पे कहीं मिलेगा और ये बस से उतरेंगे और वहां एक गाइड खड़ा होगा कि आओ साहब 1500 किलो सोना कहाँ दबा है, आओ आपको ले जाता हूँ, दिखाता हूँ? या सरकार से कोई आपको सर्टिफाइड नक्शा मिलेगा कि लो जी यहाँ पर पक्का आपको खजाना मिलेगा? नहीं. जो लोग खजाना खोजी हैं, जो ट्रेजर हंटर्स हैं, they do not expect comfort and conveniences, but they are so passionate about finding the treasure कि रास्ते में उनके अगर कोई समस्याएं आती हैं, अब अगर रास्ते में नदी पड़ गई तो वो कोई धरना प्रदर्शन थोड़ी करते हैं वहां पर कि ये नदी कहां से पड़ गई साहब, मैंने तो नदी के बारे में प्लान ही नहीं किया था. अरे वो नदी पे पुल बनाएंगे, बोट बनाएंगे, तैर के जाएंगे, पर नदी को पार करेंगे. राइट. सो जनरली यू नो आई आस्क पीपल कि आप मुझे ये बताइए कि आप और मैं इस धरती पर संग्रहालय दर्शन करने आए हैं या खजाने ढूंढने आए हैं? अगर तो संग्रहालय का दर्शन करने आए हैं तो उस व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो क्या है? दोष लगाना, बहाने बनाना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना. लेकिन जो ट्रेजर हंटर्स हैं, जो खजाना खोजी मानसिकता के लोग हैं, वो क्या करते हैं साहब? दे टेक इनिशिएटिव. They do not waste time in complaining, blaming, accusing, and giving excuses. Rather, they take some initiative. They ask themselves, am I doing what I can? Simple. Am I doing what I can? And that is how things improve. And that is how responsibility impacts in an individual's life to become successful. And not just successful. You know, successful होना देखिए इतना मुश्किल काम नहीं है. बिकमिंग सिग्निफिकेंटली सक्सेस वो मुश्किल काम है. वो कामयाबी के देखिए, कामयाब सक्सेस की डेफिनेशन तो आप सब जानते हैं जी, हमारे डिक्शनरी में लिखी है. सक्सेस का मतलब है अचीवमेंट ऑफ गोल्स. डिक्शनरी ये नहीं बता रही कैसे गोल्स. अगर एक आदमी का ये लक्ष्य है कि आज सारा दिन कुछ नहीं करूंगा और शाम तक उसने कुछ नहीं किया,
तो डिक्शनरी के हिसाब से तो वो भी कामयाब है कि देखो जी आज मेरा गोल था, आज कुछ नहीं किया, और आज किसी को पता भी नहीं चलने दिया मैंने कुछ नहीं किया, तो वो तो सक्सेसफुल है तो सही। किसी का गोल है कि मैंने ये फटा हुआ 500 का नोट किसी तरह गड्डी में डाल के निकाल देना है, यही लक्ष्य है जी, वो लक्ष्य भी अचीव करेगा तो सक्सेस ही तो है। सो टू माई माइंड the right definition, the better mature definition of success is, are you creating pleasantness in your surroundings? Are you making more people successful? If the answer is yes, I think I would like to work on that success. खाली खुद को ही कामयाब बनाना। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज और भी देखी होगी, जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो 100% दुखी रहते हैं। जो सिर्फ अपने, मैं, मेरा परिवार, सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, आप उनके स्ट्रेस लेवल चेक कर लो, दे आर हायर। द मोर पीपल यू इंक्लूड इन योर विजन, the more people that you want to work with, the more that you want to good for, the higher your happiness is. और आप इसको मेरे कहने पे मत लेकर जाइए, अपने आसपास देख लीजिए, जितने लोगों का जो विजन है वो इंक्लूसिव है, वो अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचते हैं, आप देखिए उन लोगों के आप चेकअप करा लीजिए, स्ट्रेस लेवल चेक करा लीजिए, उनके कम होंगे। ये बड़ी विडंबना है कि सिर्फ अपने बारे में 24 घंटे में जो 36 घंटे अपने बारे में सोचता है वो दुखी भी ज्यादा रहता है। ओके, so let us do what we can do. In terms of taking responsibility, I see 4 kinds of behavior जो लोग जनरली करते हैं। आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा, आपके आसपास भी आप देखेंगे, आपको ये 4 तरीके के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। मैंने आपको वो बताया था ना फॉर्मूला, E+R = O, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स = आउटकम। तो इवेंट सपोज नेगेटिव है, अच्छा यहाँ ये चीज तो आई एम श्योर हम सब मान ही रहे हैं कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम टफ सर्कमस्टांसेस में कर रहे हैं। जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तब तो सारे जिम्मेदारी लेने को तैयार है, जब टीम जीत जाती है तब तो ऑफ कोर्स सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। जब टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, देन हु कम्स फॉरवर्ड, दैट्स द मेन इशू, राइट? So in terms of taking responsibility in the tough times, I see generally 4 kinds of responses, and I call it 4V. So let me quickly share with you what are those 4 V's. The first V that I generally see is viewers response. Viewers का response कैसा होता है जी? ये दर्शक गण का response है। आप लोग जानते हैं जी, जब हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो हम उस मैच के उसमें ना हमने एक ओवर डाला है, ना हमने एक बॉल खेली है, लेकिन हम ज्यादा जुड़े हुए होते हैं खिलाड़ियों से भी, अपना काम धंधा छोड़ के भी जुड़े हुए होते हैं, राइट? अच्छा, जब हमारे यहाँ हर तीसरे महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ज्यादा उत्साहित हम लोग होते हैं, और उसमें टिप्पणियां बहुत करते हैं साहब। तो दर्शकों का क्या लक्षण है? ये खुद कुछ नहीं करते, लेकिन जो कर रहे हैं उन पर टिप्पणियां करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। ये दर्शक गण है साहब, है? कोहली अगर आउट हो जाए तो ये उसको हमेशा बताते हैं कि ये शॉट नहीं खेलना चाहिए। आजकल पता नहीं इस कोहली को हो क्या गया, इसका दिमाग कहाँ है, राइट? सो वी ऑल बिकम एक्सपर्ट व्हेन समबडी एल्स इज डूइंग समथिंग। सो दैट इज व्यूअर्स रिस्पांस। सेकंड रिस्पांस इज विक्टिम्स रिस्पांस। विक्टिम मतलब मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मैं तो जितनी मर्जी मेहनत कर लूं मेरी तो कदर होगी नहीं, मेरे को तो बचपन से ही मेरे साथ गलत हो रहा है, माँ बाप ने भी नए कपड़े मुझे नहीं दिलाए थे, बड़े भाई के दिला दिए थे, टीचर भी क्लास में मुझे ही उठा के मेरे से ही सवाल पूछता था, बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन दिया था, उन्होंने मुझको रखा नहीं, जिन्होंने रख लिया है वो कंपनी अच्छी नहीं है, तो इनके साथ बचपन से गलत हो रहा है। तो ये ना विक्टिम्स है। देखिए, एक तो होता है एक्चुअल विक्टिम जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं विक्टिम मानसिकता की। कई लोगों को हमेशा लगता है कि जो 2 लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, ये मेरे ही बारे में कुछ बात कर रहे हैं, वो एक विक्टिम माइंडसेट है। ये जो 3 लोग हंस रहे हैं ये मेरे ऊपर ही हंस रहे होंगे। ये तो आई एम टॉकिंग अबाउट विक्टिम माइंडसेट, नॉट द एक्चुअल विक्टिम। ओके, थर्ड कैटेगरी जो सबसे खतरनाक कैटेगरी है, और आप अपने आसपास देखिए साहब, हमारे देश में इसके बहुत एग्जांपल है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। थर्ड कैटेगरी इज विलन्स। व्यूअर्स, विक्टिम्स, विलन्स। विलन आप लोग जानते हैं, ये ढंग का कुछ नहीं करते, नुकसान एक्टिव होके करते हैं। आपने देखा नहीं है, हमारे देश बड़ी मुश्किल से अब ये कोरोना के बाद थोड़ा बहुत चक्का घूमना शुरू होता है, थोड़ा बहुत फिर से थोड़ी सी बाहर आती है, पर किसी ना किसी को याद आ जाती है कि इस देश का चक्का जाम करना है।
तो कोई ना कोई जा करके कि बस जी बस, क्या चक्का रोको, चक्का जाम करो। अब मुझे समझ नहीं आता, आप इसी देश के वासी हैं, आप इसी देश में रहते हैं, अपने ही देश की ट्रेन क्यों रोक रहे हो? अपने ही देश की बसों के शीशे क्यों तोड़ रहे हो? अपने ही देश का हाईवे क्यों रोक रहे हो? ये अंग्रेजों के ज़माने में करना ठीक था कि चलो हम उनके गुलाम थे। आज जो ये राज भी कर रहे हैं, ये भी अपने ही तो हैं। तो उसके तरीके दूसरे हो सकते हैं अपनी बात को कहने के, लेकिन तोड़-फोड़। तो ये जो जो विलन कैटेगरी का रिस्पॉन्स है, ये पॉजिटिव करते समय तो एक्टिव नहीं होते, लेकिन नुकसान करने में इनमें ऊर्जा बहुत आ जाती है। सो विलन कैटेगरी इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स। बट देन ये जो देश चल रहा है, ये जो दुनिया चल रही है, ये जो संस्थाएं चल रही हैं, ये जो परिवार चल रहे हैं, ये सब इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक चौथा रिस्पॉन्स देने वाला व्यक्ति भी हमेशा हर जगह होता है। एंड आई कॉल देम विक्टर्स। विक्टर्स, रिस्पॉन्सिबल पीपल। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि चलो साहब, जो हो गया उसमें तो मैं अब कुछ कर नहीं सकता, लेट मी टेक सम इनिशिएटिव। आई एम श्योर आप में से कई लोग ट्रैफिक जैम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं फंसे जरूर होंगे। तो आपने देखा होगा, हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं और बहुत बुरा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो कई लोग तो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ट्रैफिक पुलिस वालों को फीडबैक देते हैं, सरकारों को फीडबैक देते हैं कि ये फ्लाईओवर कब का बन जाना चाहिए था, पता नहीं सरकार कर क्या रही है, और ये ट्रैफिक पुलिस वाला काम नहीं करता, कैसे कैसे लोग सड़कों पे गाड़ी लेकर आ जाते हैं। अब आप ये सब कहते रहिए, इससे ट्रैफिक तो सुधर नहीं रहा, आप अंदर बैठे हैं पर चलो भड़ास निकल रही है। विक्टिम, ओ मुझे आज इसी रास्ते से आना था, पता नहीं किसका मुंह देके निकला था, मेरे साथ तो होता ही यही है। लेकिन जो विलन होगा वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल के 2-3 को कुछ ऐसा कह देगा कि वो जो जाम वैसे 1 घंटे में खुल जाता, अब ये 3 घंटे नहीं खुलेगा, राइट? लेकिन आप देखोगे इन्हीं ट्रैफिक जैम में कोई आपके और मेरे जैसा व्यक्ति भी होता है जो अपनी गाड़ी से बाहर आता है और वो ट्रैफिक पुलिस वाले की, ट्रैफिक वालों की मदद करता है गाड़ियों को थोड़ा आगे पीछे करने में। अब इन लोगों को कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से कोई पद नहीं मिला हुआ, इन लोगों को कोई बाद में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो कहते हैं गाड़ी में बैठ के कुड़कुड़ करने से अच्छा है चलो कुछ कर लेते हैं, लेट्स मेक थिंग्स बेटर। Now, how much better can we make? Of course, depends on our capabilities, abilities, our capacities. हम सब की वो क्षमता एक जैसी नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सब कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, और अगर हम सब कुछ ना कुछ कर दें तो बहुत कुछ हो सकता है, राइट? सो दैट इज व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। मैं एक संस्था में प्रोग्राम करने गया तो मैंने वहां लोगों से पूछा, मैं कहा जी आप क्यों जी रहे हैं? बड़ा सिंपल सवाल, आप क्यों जी रहे हैं? तो एक साहब कहते हैं और क्या करें, मर जाएं? हाँ? क्यों जी रहे हैं? और ऊपर से नाराज हो गए, कह रहे ये भी कोई सवाल है, क्यों जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? अरे सुबह उठा, आंख खुली, जिंदा था, आ गया, नहीं खुलती तो वहीं पड़ा रहता। हाँ? तो मैं कहा साहब मैं ये नहीं पूछा आप क्यों जिंदा है, मैं तो पूछ रहा हूँ जी आप क्यों जी रहे हैं, मतलब पर्पस क्या है? अब आपको नहीं लगता कि ये भी कोई जवाब है एक इंसान का, जी इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं, क्योंकि सुबह आंख खुल गई थी? हाँ? मुझे ये लगता है कि देखिए आप और मैं, हम सब लोग इंसान, हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम सब लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इन्हीं जिम्मेदारियों की शक्ति, ना कि बोझ, हमें जीने के लिए प्रेरित करती है, ना कि मजबूर। हम जीने के लिए प्रेरित हैं, मजबूर थोड़ी हैं। अब मैं कई लोगों की शक्लें देखता हूँ, ये जो सुबह अपने काम पर जा रहे होते हैं तो मेरा तो पेशा ही ऑब्जर्वेशन है। अब कईयों की शक्ल को देख के ऐसा लगता है जैसे ना गन्ना जा रहा है मशीन में, है? और शाम को ऐसे निकलते हैं जैसे वो पीछे से नहीं निकलता है गन्ना, बिल्कुल छिलके छिलके हो रखा है। तो मेरा एक पार्टिसिपेंट कहता है जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें तो 2-3 बार मोड़ के भी डालते हैं, है? अब आप सोच के देखिए, जो आदमी गन्ने की मानसिकता से जा रहा है कि मेरा तो वहां जूस निकाला जा रहा है, तो इस आदमी से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि क्या प्रोडक्टिविटी होगी, क्या आउटपुट आएगा इस व्यक्ति का? देखिए मुझे एक चीज समझ में आती है, कोई भी काम करने से पहले आपके और मेरे पास 2 चॉइस है, या तो हम काम को उसको करें या ना करें। अगर आप और मैं ये चुन सकते हैं कि भाई मैंने ये काम करना ही नहीं है, तो बात ही खत्म होगी, मत कीजिए उसको। लेकिन अगर किसी भी वजह से मैंने ये चुना है कि मैंने ये काम करना है, तो फिर बड़ी सिंपल फिलॉसफी जी मेरी, एनीथिंग वर्थ डूइंग शुड बी डूइंग वेल, शुड बी डन वेल। एनीथिंग वर्थ डूइंग शुड बी डन वेल।
देखिए, या तो मैं कोई काम करूंगा नहीं, अगर करूंगा तो ढंग से करूंगा, सिंपल। दिक्कत उन लोगों की है, करते भी हैं और ढंग से नहीं करते हैं। तो सुब्रतो बागची साहब, जिनकी मैं किताब आपको रेकमेंड कर रहा था, उनकी किताब पढ़िए, द प्रोफेशनल। द प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल का मतलब लोग जनरली पता क्या समझते हैं, जो भाई काम की बात करता है, सिर्फ फालतू बात नहीं करता है। ये प्रोफेशनल का मतलब नहीं है। प्रोफेशनल के बारे में 4 चीजें हैं जो वो किताब पढ़ के मुझे समझ आई, और मैं आपसे सीरियसली रिक्वेस्ट करूंगा, इस किताब को जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है। सबसे पहली चीज, प्रोफेशनल की निशानी है, यू लव व्हाट यू डू। आप जो करते हैं, अगर आप उससे प्रेम करते हैं, उसको प्रेम करते हुए करते हैं, तो आप प्रोफेशनल हैं। आपको काम पर जाना पड़ता नहीं है, आप काम पर जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यू आर अ प्रोफेशनल। दैट्स अ साइन ऑफ अ प्रोफेशनल, दैट ही और शी लव्स हिज और हर जॉब। दैट्स नंबर 1 sign. Second sign of a professional, you are constantly updating and upgrading yourself. आप अपने आप को निरंतर अपडेट और अपग्रेड करते हो। तो ऐसी कोई आपके फील्ड से रिलेटेड जानकारी नहीं होती जो आपको नहीं होती। So you are updated and upgraded on a consistent basis. Number 3, diligence without supervision. Diligence without supervision. आपको पता नहीं, साधारण लोगों का बड़ा सिंपल फिलॉसफी क्या है, कोई देखे तो काम, ना देखे विश्राम। काम करो उतना, पैसा मिले जितना, बने रहो पगले, काम करें अगले। आपने भी सुनी होंगी ना ये चलती चलती कहावतें हैं, राइट। मुझे तो एक चीज समझ में आती है साहब, ये जो बने रहो पगले, काम करें अगले, मुझे नहीं समझ में आता ये लोग घर जाकर अपने बच्चों को जब मिलते होंगे, उनको कैसे फेस करते होंगे, जब अपना चेहरा आईने में देखते होंगे तो कैसे देखते होंगे कि आ गया पगला घर पे। आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो डिलिजेंस विदाउट सुपरविजन। एंड नंबर 4, प्रोफेशनल की निशानी ये है कि उसको देख के लोग उस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। वो इस तरीके से अपने को कंडक्ट करता है कि उसके प्रोफेशन की गरिमा बढ़ जाती है। दैट्स अ साइन ऑफ अ प्रोफेशनल। ओके, सो आई गेस ऑल रिस्पॉन्सिबल पीपल आर प्रोफेशनल्स, और ये इन्हीं विक्टर्स हैं जिनके कारण ये दुनिया, ये संस्थाएं, ये परिवार सुखमय तरीके से चल रहे हैं। और देखिए, मैं ज्यादा ना समय लेते हुए आपका अंत में बस आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा। देखिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे अंततोगत्वा आपका क्या लक्ष्य है, तो लोग यही कहते हैं जी कि मेरा लक्ष्य है खुश रहना, शांति प्राप्त करना, राइट, सफलता प्राप्त करना। देखिए, अंग्रेजी में ना 2 शब्द हैं, आप सब जानते हैं, एक है प्लेजर, दूसरा है जॉय। प्लेजर, जॉय। और आप सब लोग जानते हैं, जॉय इज अ हायर एंड डीपर फीलिंग देन प्लेजर। प्लेजर क्या है? आपने कोई चुटकुला सुन लिया, आप खुश हो गए, प्लेजर है। आपने अपने कोई टेस्टी खाना खा लिया, आपके टेस्ट बड्स को अच्छा लग गया, प्लेजर है। अच्छा, आप किसी और पे हंस दिए, किसी और से गलती हुई, प्लेजर है, राइट। अच्छे कंफर्टेबल कुर्सी पे बैठे हुए हैं, प्लेजर है। लेकिन जॉय कब है? Joy comes, we feel joy when we are able to contribute. Joy we only feel when we are able to give something. In taking there is a pleasure, but in giving there is joy. आप सब लोगों ने हिंदुस्तान की एक सच्ची कहानी जरूर सुनी होगी कि एक बहुत गरीब डेली वेजर, जो डेली दिहाड़ी वाला मजदूर था, उसने अपनी बेटी को मोटिवेट करने के लिए पढ़ाई के प्रति, उसने कहा, बेटी, जो कि रोज की मतलब दिहाड़ी लगाता है व्यक्ति, बहुत गरीब आदमी, उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अगर तू 10वीं क्लास में 95% से ऊपर नंबर लाई तो मैं तुझे अपने इस शहर के इस रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाऊंगा। अब उस आदमी ने जिस रेस्टोरेंट की बात की, वो उस रेस्टोरेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन बेटी को मोटिवेट करने के लिए उसने क्या दिया, एंड गेस व्हाट, बेटी के नंबर आए 96%। अब पिताजी को समस्या ये होगी कि अब वचन पूरा करना है, तो खैर उन्होंने आस पड़ोस से कुछ पैसे वैसे इकट्ठे किए, जो उनको समझ में आता था कि यहाँ शायद इतना खर्चा होगा। कुछ पैसे इकट्ठे किए, कोई थोड़े से साफ सुथरे कपड़े लिए, क्योंकि वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का रेस्टोरेंट उन्होंने बोला था। किसी तरह से होटल पहुंचे। होटल अंदर जाकर के जब उन्होंने मेन्यू देखा
तो उनको समझ में आ गया कि जितने पैसे मैं लाया हूं इसमें तो एक डोसा और एक कॉफी आएगी। तो उन्होंने, वेटर आया कि हाँ जी सर क्या लाऊं, तो उन्होंने कहा जी एक डोसा एक कॉफी। तो वेटर वहीं खड़ा रहा, उसको लगा कि भाई ये इतने ऑर्डर कैसे हो सकता है, सिर्फ इतना ऑर्डर। तो वो पिता थोड़ा सा सकुचाते हुए वो उठे, वेटर को साइड में ले जाके कहा कि देख भाई, मैं इस रेस्टोरेंट का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया था कि अगर उसके इतने नंबर डोसे भी ऑर्डर नहीं कर सकते तो अगर आप बुरा ना माने सर, तो मैं अपनी टिप में से इनके लिए एक डोसा और एक कॉफी और ऑर्डर दे सकता हूँ क्या। तो रेस्टोरेंट के ओनर ने जब अपने वेटर की ये बात सुनी तो उसको अच्छा लगा कि चलो यार ये ऐसा सोचता है, तो उसने कहा नहीं नहीं तुझे करने की जरूरत नहीं है, रेस्टोरेंट की तरफ से हम इनको दूसरा डोसा और दूसरी कॉफी सर्व करेंगे। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकी, रेस्टोरेंट का ओनर उस टेबल पर गया और उसने कहा सर, मुझे अभी अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि आपने हमारे होटल को चुना है अपनी बिटिया की इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। आपने हमें गौरवान्वित किया है हमारे रेस्टोरेंट को चुन के इस अमेजिंग अचीवमेंट के लिए। तो अगर आप बुरा ना माने तो आपकी ये जो आज की मील है ये होटल की तरफ से है, आप कृपया हमें मना ना कीजिएगा, आपने हमें बहुत गौरव ऑलरेडी प्रदान किया है। अब ये सुन के बापा और बेटी की आंखों में हल्की सी गौरव भी और हल्का सा आभार भी उन्होंने महसूस किया, तो मान गए वो। और उस बात यहीं खत्म नहीं हुई, रेस्टोरेंट के ओनर ने 2 मिठाई के डब्बे लाया और कहा साहब ये एक मिठाई का डब्बा आप प्लीज अपने पड़ोसियों में हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से बांटिए, क्योंकि आपकी बेटी ने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। और ये एक डब्बा अगर आप बुरा ना माने तो मेरे जो ग्राहक यहाँ बैठे हैं इनको बांट दीजिए। मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी की इस उपलब्धि की को हम अपने बाकी सब ग्राहकों के साथ भी शेयर करें। तो खैर पिता ने सकुचाते हुए वो सब किया, लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती साहब। बहुत सालों बाद इस रेस्टोरेंट ओनर के पास वहां के डीसी का फोन आया कि कल मैं और मेरे कुछ साथी आपके यहाँ लंच मीटिंग पर आ रहे हैं, तो आप जरा तैयारी रखिएगा, 10-15 लोग आए। आप सब लोग जानते हैं साहब कि अगर डीसी साहब का फोन आ रहा है किसी रेस्टोरेंट वाले को तो पहला ख्याल उसके दिमाग में यही आया कि लगता कोई कंप्लेंट हो गई है, लगता कोई समस्या है, या अब ये लोग आ रहे हैं तो कहीं कोई कमी ना रह जाए, तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बट एनीवे, उसने तैयारी की साहब, फूल माला लेके तैयार खड़ा था कि साहब लोग आएंगे। तो अगले दिन 10 गाड़ियां पहुंची साहब, वो तब जब लाल बत्ती अलाउड थी, 10 गाड़ियां पहुंची और रेस्टोरेंट का ओनर बिल्कुल फूल माला लेके तैयार था। पहली गाड़ी में से एक लेडी उतरी और उतर के वो सीधा रेस्टोरेंट ओनर की तरफ दौड़ती हुई गई। इससे पहले कि वो फूल माला अर्पण करता लेडी को, वो लेडी ने पैर छुए उस रेस्टोरेंट ओनर के कि नमस्ते अंकल, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम ये है और मैं इस क्षेत्र की डीसी हूं, और आप मुझे नहीं पहचानते शायद, पर मैं आपको कभी नहीं भूली। मैं वही लड़की हूं जिसकी 10वीं कक्षा में 96% नंबर आने पे आपने हमारा हौसला बढ़ाया था, अपने ग्राहकों को मिठाई बांटी थी। आपने हमसे उस दिन पैसे नहीं लिए थे, लेकिन आपने ये दया करके नहीं किया था, आपने दया नहीं दिखाई थी हम पर, आपने कहा था कि हमने आपको गौरव दिया है। कह रही वो मैं भूली नहीं, और उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं और पढ़ाई करूंगी और गौरव हासिल करूंगी, और आज आपकी कृपा से मैं इस क्षेत्र की डीसी हूं और आपके एरिया के जो डीसी हैं वो मेरे मित्र हैं। उनसे जब मैंने अपनी ये कथा शेयर की तो उन्होंने कहा वो भी आपसे मिलना चाहेंगे। तो आज हम सब लोग आपके यहाँ आए हैं और आज हम आपके यहाँ भोजन भी करेंगे, लेकिन आज हम आपको इसका पैसा जरूर देना चाहेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये कहानी इसलिए अंत में शेयर कर रहा हूं, कुछ नहीं पता साहब आपका और मेरा जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार किस व्यक्ति के जीवन में कौन सा इम्पैक्ट लेकर आए। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम वो जरूर करें जो हम कर सकते हैं। So with this, I would like to once again congratulate all of you for the golden jubilee of your esteemed institution, university. Once again, I would like to thank Dr. A.K. Gupta for this wonderful opportunity that you gave me, sir. And VC Saab, thank you so very much for your nice words. And I would like to thank all ladies and gentlemen for your patient listening. तो आप सब लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पर ध्यान रखिए अस्त व्यस्त मत रहिए।
maintain this energy and smile in your day-to-day life. Thank you so very much. Over to you, Dr. Sir.